జేఎన్యూలో విద్యార్థులను తప్పుపట్టారని ఆరోపించారు. జస్టిస్ ఫర్ రోహిత్ వేముల ఆందోళనను ఢిల్లీలో కొనసాగించాలని తాము ముందుగానే నిర్ణయించుకున్నామని, ఇక్కడ ఘటన జరిగిన తర్వాత తాను ఇక్కడికొచ్చి విద్యార్థి సంఘాల నేతలతో మాట్లాడానని తెలిపాడు. కన్హయ్య కుమార్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. साथियों, सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि मुझे तेलुगु नहीं आती है और इस देश के अंदर अगर आप देशभक्त हैं, देशभक्ति करना चाहते हैं, आपका घर अगर बिहार है तो हिंदी पट्टी छोड़कर आपको पूरे देश में जाकर माफी मांगनी पड़ेगी। यही देशभक्ति है, क्योंकि सिर्फ हिंदी इस देश की भाषा नहीं है। इस देश की भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, वो तमाम भाषा और बोली है जिसके बारे में हम सब शायद जानते भी नहीं हैं, हमको पता भी नहीं है उसका नाम। तो अगर हम भारत की बात करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ बिहार की बात करेंगे और हिंदी की बात करेंगे। तो मुझे माफ कीजिएगा, मुझे तेलुगु नहीं आती, लेकिन तेलुगु का एक शब्द मुझे मालूम है। उस शब्द को कहते हैं गाड़ू। तो यहां मौजूद आप सारे लोग कुछ मत कहिए, छोड़ दीजिए, कुछ मत कहिए, उनको कुछ मत कहिए। बैठ जाइए आप लोग बैठ जाइए आप लोग, सारे लोग बैठ जाइए। దయచేసి అందరు కూర్చోండి, మీటింగ్ యథావిధిగా కొనసాగుతుంది. దయచేసి అందరు కూర్చోవాలి, దయచేసి అందరు కూర్చోండి, మీటింగ్ యథావిధిగా కొనసాగుతుంది. దయచేసి అందరు కూర్చోండి, మిత్రులారా అందరు కూర్చోండి, దయచేసి అందరు కూర్చోండి. కొందరు మూకాలు ఇటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు, మీరందరూ కూడా దయచేసి కూర్చోండి, అందరు కూర్చోండి. ఈ ఘటనపై మరిన్ని అప్డేట్స్ మా కరెస్పాండెంట్ కృష్ణని అడిగి తెలుసుకుందాం. కృష్ణయ్య, సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో కన్హయ్య మాట్లాడుతున్న టైంలో అక్కడ ఆందోళన నిర్వహించారు ఆందోళనకారులు, అసలు అక్కడ ఏం జరిగింది? నీలిమ, ఏదైతే సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రాల్లో గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది. ఏదైతే రాజ్యాంగ హక్కుల పరిరక్షణ సదస్సు పేరిట వామపక్ష పార్టీలు సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా కన్నయ్య ఏదైతే హైదరాబాద్ పర్యటనకు ఆయన రావడం జరిగిందో ఆయన ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. కన్నయ్య మాట్లాడుతున్న సమయంలో కొంతమంది ఎవరైతే విద్యార్థులు ఆయనకు వ్యతిరేకంగా భారత్ మాతాకి జై, తర్వాత దేశద్రోహి కన్నయ్య అంటూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. వెంటనే అక్కడ మిగతా సమావేశానికి హాజరైన ఈ వామపక్ష పార్టీలకు సంబంధించిన కార్యకర్తలంతా వారిపైన దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నం చేశారు. అయితే వారిని వదిలిపెట్టాలని, వారిపైన దాడి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయకూడదు అని చెప్పేసి కన్నయ్య, తర్వాత ఎవరైతే సభ వేదిక మీద ఉన్నారో ఆ అతిథులు, వారి ముఖ్య అతిథులు కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు ఎవరైతే వారు కన్నయ్యకి ఆ గొడవలు అంటే సభలో ఆందోళనకు దిగారో వారిని వెంటనే ఆ యువకులను అదుపులోకి తీసుకొని స్టేషన్కు తరలించడం జరిగింది. నీలిమ, ప్రస్తుతం అక్కడ పరిస్థితి ఏ విధంగా సద్దుమణిగిందా? పోలీసులు అక్కడ ఎంతమంది ఉద్రిక్తతగా మారింది. ఎవరైతే ఈ మొత్తం దాదాపు ఒక 5 మంది యువకులు, అంటే ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ కి సంబంధించిన యువకులా లేకపోతే ఈ ఇతర పార్టీ ఏదైతే వారు ఇక్కడ ఆరోపణలు చేస్తున్నట్టు బీజేపీకి సంబంధించిన యువమోర్చాకు సంబంధించిన కార్యకర్తల అన్న కోణంలో కూడా వారు దర్యాప్తిస్తున్నారు. కన్నయ్య రావడం దాన్ని తట్టుకోలేక కావాలనే కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు అతన్ని భయపెట్టాలన్న ప్రయత్నంలో, ఆ తర్వాత భయపెట్టాలన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నారని చెప్పి వారు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. కన్నయ్య ఎప్పుడైతే మిగతా అతిథులు ఎవరైతే మాట్లాడినారో అప్పుడు లేదు. కన్నయ్య మాట్లాడుతున్న సమయంలోనే ఈ గొడవ ఒక్కసారిగా భారత్ మాతాకి జై అంటూ
నినాదాలు చేసి కన్నయ్యకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేయడం జరగడంతో కొంత ఉద్రిక్తత వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. ఈ వామపక్ష పార్టీలకు సంబంధించిన కార్యకర్తలు ఆ తర్వాత మిగతా వ్యక్తులు ఎవరైతే అంటే ఈ సమావేశానికి రావడం జరిగిందో వారంతా ఒక్కసారిగా వారిపైన దాడికి పాల్పడ్డారు. అయితే వారిని కొట్టొద్దు అని చెప్పేసి ఎవరైతే ఈ అతిథులు ఇక్కడికి రావడం జరిగిందో వాళ్ళు పదే పదే చెప్తున్నప్పటికీ కూడా వారిపైన దాడి జరిగింది. అయినా కూడా పోలీసులు వెంటనే అప్రమత్తమై వారిని అదుపులోకి తీసుకొని స్టేషన్కి తరలించారు. ప్రస్తుతం కూడా కొంచెం టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. నీలిమ, అయితే ఆ వచ్చిన ఆందోళనకారులు అసలు ఎవరు అనేది ఏమన్నా తెలిసిందా? అసలు వారి డిమాండ్స్ ఏంటి? सुनिए साहब, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश है। जब इस देश में अपर कास्ट लोग उनको घर नहीं देते थे तो वो झूठ बोलकर घर लेते थे, और जब पता चलता था कि वो दलित हैं तो उनका सामान बाहर फेंक दिया जाता था। लेकिन वो घुसाते नहीं थे, वो चिल्लाते नहीं थे, वो मारपीट नहीं थे करते थे। अगर आप बाबा साहब को मानते हैं तो आपको भी चिल्लाना नहीं चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए और अपना पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पब्लिसिटी क्रिएट्स पब्लिसिटी। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी को और उनकी पुलिस को कि उन्होंने हमें पब्लिसिटी दे दी। अब कुछ लोग मुझे मारकर पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। लेने दीजिए उनको पब्लिसिटी, क्योंकि ये देश गांधी का देश है। कुछ भी कर लो, गोडसे का मंदिर नहीं बनेगा यहाँ पर। कुछ भी कर लो, ये नहीं होने वाला है। यह देश भगत सिंह का देश है, और भगत सिंह कहते हैं कि इनकलाब विचारों के शान पर तेज होगा, जूता और पत्थर मारने से नहीं होगा। इसीलिए मैं उस व्यक्ति से दुखी नहीं हूं जिसने जूता चलाया, मैं उस व्यक्ति से दुखी नहीं हूं जो कल मेरे ऊपर पत्थर मारा, मैं उस व्यक्ति से भी दुखी नहीं हूं जो जेएनयू आकर इससे भी ज्यादा भीड़ थी और मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन जेएनयू के स्टूडेंट्स ने उसको बिठाया, उसको पानी पिलाया, उसको चाय पिलाई और कहा कि किसके कहने पे कर रहे हो? बोला खुद। बोला तब तो छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ दिन के बाद तुमको पता चलेगा कि तुम ये पत्थर खुद पे मार रहे हो, तुम ये जूता खुद पे मार रहे हो, क्योंकि तुमको नहीं मालूम कि इस देश का भविष्य क्या होने जा रहा है। इसीलिए मैं दुखी हूं आप लोगों से। जब भी कोई व्यक्ति आपके बीच आकर इस तरह का माहौल पैदा करे, उसको कुछ मत कहिए। कैमरा में जो लोग यहां लेकर खड़े हैं वो उसका फोटो खींच लेंगे, उसकी आत्मा शांत हो जाएगी और उसकी भक्ति वहीं समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आप लोग उतारू मत होइए, और कोई जरूरी नहीं है मीडिया के लोगों को धक्का मुक्का करने का। मीडिया के लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र के चौथे पिलर हैं। वो हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं। देख लीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता, किसी के डरने से मैं डरने वाला नहीं हूं और किसी के झुकाने से मैं झुकने वाला नहीं हूं। इनको लगता है कि यूनिवर्सिटी घुसने से रोक देंगे तो ये रोहित का सवाल उठाना बंद कर देगा। इनको लगता है कि रास्ते चलते हुए पत्थर मार देंगे तो ये हैदराबाद आना बंद कर देगा। इनको लगता है कि सेमिनार में जूता मार देंगे तो बोलना बंद कर देगा। भाई साहब, डरने वाले नहीं हैं, कुछ भी कर लो। बोलने की आजादी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और बोलते रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो। दोस्तों, मैं अपनी बात ये कह रहा था कि मुझे तेलुगु नहीं आती, लेकिन तेलुगु का एक शब्द मुझे मालूम है, और वो शब्द है गारू। और आप सब लोग हमारे लिए गारू हैं, और आप सभी का मैं जेएनयू की तरफ से खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आपको क्रांतिकारी सलाम करता हूं, आपको जय भीम पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं हैदराबाद में खड़ा हूं, और इससे पहले भी मैं हैदराबाद आया था। मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया। रोहित के सवाल को लेकर जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भूख हड़ताल पर थे। इनके साथ हमने 3 दिन बिताया,
और तय किया कि रोहित की लड़ाई एक यूनिवर्सिटी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस देश के अंदर हजारों साल से चलने वाले छुआछूत को समाप्त कराने की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश के अंदर ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म कराने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी जो पहचान है, उस पहचान को आपस में लड़ाने की लड़ाई के खिलाफ ये लड़ाई है। इसीलिए मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि आज चाहे कोई भी हो, चाहे मार्क्सिस्ट हो, अम्बेडकराइट हो, सोशलिस्ट हो, लोहियाइट हो, या फिर अपने आप को मध्यमार्गी सेंटरिस्ट कहने वाले लोग हों, आज तमाम तरीके के लोग अंडर अटैक हैं, क्योंकि इस मुल्क में जमहूरियत पे हमला हो रहा है। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं। आज से कुछ बुजुर्ग यहां मौजूद हैं, आज से 20 साल पहले कोई अगर आपको कहता कि पानी को बेचेंगे, पानी का धंधा करेंगे, तो आपको लगता ये आदमी पागल हो गया है। पानी भी भला बिकने की चीज है। पानी पर पहले भी सबका हक नहीं था। दलितों को कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था और नदी में उनके लिए अलग घाट होता था। आज एक नए तरीके का कुआं बन रहा है, आज एक नए तरीके का घाट बन रहा है। और वो क्या है? वो ये है इस बोतल में बिकने वाला पानी। तो जब हम इस देश के अंदर गरीब की बात करते हैं, प्रोलेटारियत की बात करते हैं, तो वो कौन लोग हैं? इस देश में वो लोग दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक हैं। यह बात सरकारी आंकड़ा कहता है, यह बात हम नहीं कह रहे हैं। तो चाहे आप मार्क्सिस्ट हो, प्रोलेटेरियत की आजादी चाहते हो, चाहे आप अम्बेडकराइट हो, दलितों की आजादी चाहते हो, चाहे आप बिरसा मुंडा को मानने वाले आदिवासी अधिकारों को लेकर लड़ने वाले लोग हो, चाहे आप अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर लड़ने वाले लोग हो, आज हमारी लड़ाई इस नव उदारीकरण के दौर में एकजुट हो गई है, क्योंकि डिग्निटी की लड़ाई, पॉवर्टी के इरिडिकेशन की लड़ाई बनती जा रही है। इसीलिए हम तमाम लोग को जो अपने आप को समझते हैं कि हम ऑप्रेस्ड हैं, हमारा कोई भी कास्ट हो, हमारा कोई भी रिलीजन हो, हमको ऑप्रेसर के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। और अगर हम एकजुट होंगे तो हम जीतेंगे। और जो सपना है हमारे संविधान का, सबके लिए न्याय को सुनिश्चित करना, सबके लिए बराबरी को सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी मुल्क बनाना, ये मुल्क हम बना सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को सच कर सकते हैं, भगत सिंह के सपनों का देश बना सकते हैं। इसीलिए जो बात मैं कह रहा हूं, जय भीम लाल सलाम, उसका एक बुनियादी मतलब है। बुनियादी मतलब यह है कि चाहे लड़ाई प्रोलेटारियत की हो, चाहे लड़ाई दलितों की हो, चाहे लड़ाई आदिवासियों की हो, पिछड़ों की हो, अल्पसंख्यकों की हो, महिलाओं की हो, उन लड़ाइयों को हमको एकजुट करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बीजेपी माइनॉरिटी के खिलाफ है। मैं कहता हूं नहीं, बीजेपी दरअसल मेजॉरिटी के खिलाफ है। क्योंकि माइनॉरिटी में तो वो लोग हैं जो 100 घराने इस मुल्क की 95% संपत्ति को अपने कब्जे में लिए हुए हैं, वो माइनॉरिटी हैं। वो लोग जो 0.5% हैं और जिनके ऊपर बजट का 65% खर्च होता है, वो लोग हैं और उनके पक्ष में वो खड़ा होता है। एक इंसान ने हमको कहा कि आप बार बार मोदी जी के खिलाफ क्यों बोलते हैं? हमने कहा अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते और आप अगर विद्यार्थियों के खिलाफ नीति बनाते, आप अगर इस देश के अंदर कमजोर लोगों के खिलाफ नीति बनाते, तो हम आपके खिलाफ बोल रहे होते। हमें व्यक्ति से कोई नफरत नहीं है। इसीलिए यहां बैठकर
मैंने मोदी जी के लिए एक शेर लिखा है, वो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि आप मेरी गली में आए क्यों, नाउम्मीदी में उम्मीद जगाए क्यों, खुश थे अपनी मुफलिसी में, अच्छे दिन का सपना दिखाए क्यों। अगर हम पूछ रहे हैं आपसे कि हमारा 15 लाख कहां है, तो इसमें मेरा क्या दोष है, आप ही ने कहा था। अगर हम कह रहे हैं कि महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ जा रही है हर बार सेंसेक्स की उछाल के साथ, तो इसमें मेरा क्या दोष है। आपने कहा था कि भारत एक युवा राष्ट्र है, हम 10 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। तो हम पूछते हैं कि 16 करोड़ लोग सरकारी रजिस्टर में नाम लिखाए हैं, उनको रोजगार कब मिलेगा, अच्छा दिन कब आएगा। हम मोदी जी के खिलाफ नहीं हैं। लोगों ने कहा कि आप पूरे देश के छात्रों को एकजुट कर रहे हैं। हमने कहा तोड़ कौन रहा है कि हमें एकजुट करने की जरूरत पड़ रही है। तो उस आदमी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि वो तोड़ने वाले के साथ खड़ा था और आप जोड़ने वाले के साथ खड़े हैं। हम हैदराबाद की एक एक जनता को, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की एक एक जनता को जेएनयू की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप जेएनयू के पक्ष में बोल रहे हैं, आप साथी रोहित के पक्ष में बोल रहे हैं, तो आप जमहूरियत के पक्ष में बोल रहे हैं, सही को सही कहने के पक्ष में बोल रहे हैं और गलत को गलत कहने के पक्ष में बोल रहे हैं। इसीलिए ये बोलना जरूरी है। ये बोलना जरूरी इसलिए है कि हम बोलेंगे नहीं तो हम समझेंगे नहीं, और हम समझेंगे नहीं तो हम एकजुट नहीं होंगे, और हम एकजुट नहीं होंगे तो हम लड़ेंगे नहीं, और हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। इसीलिए हमको लड़ने की जरूरत है। और एक बात मैं आपको कह दूं कि हम लोग जेएनयू में जय भीम लाल सलाम के साथ एक और नारा लगाते हैं, और वो नारा है जातिवाद का एक जवाब, जय भीम इनकलाब। इस देश के अंदर जातिवाद को खत्म करके ही इनकलाब लाया जा सकता है। इस देश के अंदर महिलाओं के हक की बात करके ही इनकलाब लाया जा सकता है। इस देश के अंदर किसानों मजदूरों के हक की बात करके ही इनकलाब लाया जा सकता है। और इस देश का एक एक कमजोर आदमी जो 99% है, उसके पक्ष में बोल करके ही इनकलाब लाया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, हमारा आपसे अपील है कि ये लाख कोशिश कर लें, हम इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। इन्होंने रोहित के सवाल को भटकाने के लिए कन्हैया को खड़ा कर दिया, और उनको लगा कि इसको अचानक से पब्लिसिटी देकर रोहित के सवाल को भुला देंगे। लेकिन उनको कहां पता था, जेल जाने से पहले भी there was movement for justice for Rohit Vemula, and after coming from the prison, the still fight is justice for Rohit Vemula, and the act should be passed to stop the discrimination in the university campuses. That is Rohit Act. That is Rohit Act. For the Rohit Act, we are committed and we are fighting, and we will do it. We will achieve it. This is our commitment, and you cannot. आप हमें लड़ा नहीं सकते, दो मूर्ति बनाकर हमें भिड़ा नहीं सकते। और हमने अपने साथियों को कहा कि आप टी शर्ट पे हमारा चेहरा मत लगाइए, आप रोहित का चेहरा लगाइए, कन्हैया का चेहरा अपने आप लोगों को दिख जाएगा। क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर जेएनयू के ऊपर हमला किया गया है तो उसका एकमात्र कारण था, वो कारण ये था कि इस देश के अंदर हमारी सरकार विकासवादी गुब्बारे में हवा भर रही थी। अचानक से जो अर्थव्यवस्था की कमजोरी है, अंतर्विरोध है, उसने उस विकासवादी गुब्बारे की हवा निकाल दी। तो अब इनको फिर से चुनाव लड़ना है, तो इन्होंने कहा ऐसा करो, लोगों के पास विकासवादी गुब्बारा तो पहुंचा नहीं पाए, राष्ट्रवादी गुब्बारा पहुंचा देते हैं। तो उनको कह देना चाहते हैं कि लोग राष्ट्रवादी गुब्बारा पहले से पकड़े हुए हैं, आपका नकली राष्ट्रवाद का गुब्बारा नहीं पकड़ने वाले हैं। इसीलिए
इस देश के अंदर अगर राष्ट्रवाद की बहस छिड़ी है तो हमें लगता है इस बहस में मुकम्मल तौर पे इस बात को कहना पड़ेगा कि यह देश किसी एक भाषा का देश नहीं है, यह देश किसी एक धर्म का देश नहीं है, यह देश किसी एक जाति का देश नहीं है, यह देश किसी एक लिंग का देश नहीं है, यह देश है, देशों का देश है। इंडिया इज द नेशन ऑफ नेशंस एंड वी शुड respect all kind of nationalities in the concept of Indian nationalism, precisely where we should stand in the support of nationalism, not in the support of casteist, Brahminical, Hindu nationalism. This is our position. दोस्तों, इनके पास एक स्क्रिप्ट కానీ ప్రసంగం కొనసాగుతోంది, లైవ్ చూద్దాం. है और भारत माता रहेगी, लेकिन भारत माता का रंग सिर्फ सफेद नहीं होगा, उसका रंग काला भी होगा, वो श्यामली भी होगी और उसके पास चमचमाती भगवा साड़ी नहीं, फटा हुआ तिरंगा का साड़ी भी होगा। और कुछ ऐसे भी वस्त्र हैं जहां साड़ी नहीं सलवार कमीज पहना जाता है, जो आदिवासियों का प्रतीक है, भारत माता वो भी पहनेगी। तुम भारत माता को हेजमोनाइज नहीं कर सकते हो, तुम भारत माता को अपने रंग में नहीं रंग सकते हो। भारत माता का रंग हिंदुस्तान का रंग है, 125 करोड़ लोगों का रंग है और इस रंग को तुम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लाल के खिलाफ नीले का इस्तेमाल नहीं होगा। लाल और नीला मिलकर के जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ लड़ेगा, यही संघर्ष है, यही लड़ाई है। और बात तो मैं यहां तक करता हूं कि लाल और नीला ही दो रंग नहीं होता। कहते हैं 7 सुर होते हैं और 7 रंग होते हैं। इस देश के अंदर सच में अगर कोई क्रांति हो सकती है तो वो क्रांति छुआछूत के खिलाफ, वो क्रांति आर्थिक ऊंच नीच के खिलाफ हो सकती है। और उस क्रांति के रंग को लेकर हम में कोई झगड़ा नहीं है। हम सतरंगी क्रांति करने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हरा भी प्यारा है, सफेद भी प्यारा है, केसरिया भी हमारा है, चक्र भी हमारा है। भारत माता हमारी है, भारत की अम्मी और भारत के तमाम लोग, चाहे वो मदर क्यों ना हो, वो भी हमारी हैं और हम उनको किसी रूप में बांटना नहीं चाहते। ये क्यों बांट रहे हैं हमको? क्योंकि इनके पीछे एक साजिश है। साजिश क्या है? दादरी में मार दो एक मुसलमान को, मार दो अखलाक को, और लोग ये नहीं पूछेंगे कि वो आदमी मारा क्यों गया। लोग ये पूछेंगे कि फ्रिज में मांस किस चीज का रखा था। मार दो रोहित को, कर दो उसकी हत्या। लोग ये नहीं पूछेंगे कि रोहित मरा क्यों, उससे पूछी जाएगी कि उसकी जात क्या है। शर्म आती है, शर्म आती है इस राजनीति पे और दुख होता है ऐसे नैरेटिव पे जिसको इस देश के अंदर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हमको लगता है मरने वाले इंसान की जात और धर्म पूछने से पहले मरने का कारण पूछना चाहिए और जो लोग जिम्मेवार हैं उन जिम्मेवार लोगों को ढूंढना चाहिए। इन्होंने नई साजिश रची। हम विद्यार्थियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को खड़ा करने का कोशिश किया। हमने कहा कि आप नहीं खड़ा कर सकते सुरक्षा बलों को हमारे खिलाफ, क्योंकि जो लोग शहीद हो रहे हैं सीमा पे वो भी शहीद हैं, जो लोग शहादत दे रहे हैं खेतों में वो भी शहीद हैं, और जो लोग शहादत दे रहे हैं यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला वो भी शहीद हैं। हम शहीदों को आपस में आप नहीं लड़ा सकते हैं, क्योंकि हम शहादत दे रहे हैं इस समाज के अंदर गैर बराबरी को खत्म करने के लिए, बराबरी को स्थापित करने के लिए। और आप हमारी लड़ाई को कमजोर नहीं कर सकते, आप हमें बांट नहीं सकते। यही हमारा कमिटमेंट है, यही हमारी समझदारी है। इसीलिए साथियों, बस एक बात अंतिम तौर पर कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि गंभीर दौर है। एक बड़ा आर्थिक संकट इस देश के अंदर उत्पन्न हुआ है और ये आर्थिक संकट सिर्फ इस देश का संकट नहीं है, ये संकट पूरी दुनिया का संकट है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को इतना ज्यादा वोट मिल रहा है, जो सीधे तौर पे कहता है कि मुसलमानों को अमेरिका छोड़कर चले जाना चाहिए।
और वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाला है। इस बात पर आपको बार बार सोचना पड़ेगा कि दंगा करा करके लोग कैसे सरकार बना रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जिसको कहते हैं जुआ वाली पूंजीवाद, जहां लोग पैसे लेकर के उत्पादन करने के लिए नहीं जाते, फैक्ट्री नहीं लगाते, किसानों को कर्ज नहीं देते, विद्यार्थियों को वजीफा नहीं देते, बल्कि सट्टा बाजार में बैठकर सट्टा खेलते हैं। उस क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते जो क्राइसिस पैदा हुआ है, उस क्राइसिस के चलते पूरी दुनिया में एक फासिस्ट सरकारें बन करके आ रही है और भारत में ये संकट दुगना हो जाता है, क्योंकि भारत एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर लोगों को आपस में लड़ा देना बहुत आसान है। इसीलिए बार बार हम मिनिमम यूनिटी की बात कर रहे हैं कि अगर हमको इस क्रोनी कैपिटलिज्म के लूट से इस देश को बचाना है तो अपनी मिनिमम यूनिटी बनानी पड़ेगी और जो प्रोडक्टिव कैपिटल है उस प्रोडक्टिव कैपिटल के पक्ष में हमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि वही प्रोडक्टिव कैपिटल अगर प्रोडक्शन करेगा तो रोजगार जनरेट होगा, शिक्षा जनरेट होगा, तभी इस देश के अंदर जो विभाजन के आधार पर होने वाली राजनीति है उसको हम खत्म कर सकते हैं, उसको खारिज कर सकते हैं। जब मैं कहता हूं राजनीति की बात तो कुछ लोग कहते हैं कि विद्यार्थी हो, पॉलिटिक्स की बात क्यों करते हो। हमने कहा जो लोग आजकल संसद में बैठकर हमें राजनीति करने से मना कर रहे हैं, पहली और बात तो यह कि वह भी राजनीति से ही वहां तक पहुंचे हैं, और दूसरी बात यह कि इस देश में अगर संकट उत्पन्न हो गया है तो उस संकट को खत्म करने के लिए हम पूछेंगे नहीं कि कौन हमारे साथ आ रहा है, उठाएंगे झंडा, निकल पड़ेंगे आगे, क्योंकि इस देश को बचाने की ये लड़ाई है, ये राजनीति नहीं है। आप अगर हमारे घर पे हमला करेंगे, हमारे पहचान पे हमला करेंगे, क्या कहा साथी रोहित ने? साथी रोहित ने कहा कि किसी भी दलित का पैदा होना एक हादसा है। दलित पैदा होगा लेकिन दलित होकर नहीं मरेगा। रोहित बनेगा लेकिन रोहित मरेगा नहीं, वो लड़ेगा अपने हक के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। ये लड़ाई आज हमारे सामने है। और जब समाज में ऐसा संकट है, जब समाज में संकट गहराया है कि हमको वजीफा नहीं मिल रहा, अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब हमको नौकरी नहीं मिल रही, तो हम जिम्मेदार आदमी को ढूंढेंगे और उसका लखटकिया कोट पकड़ करके उससे पूछेंगे कि लखटकिया कोट के लिए पैसा है और हमारा वजीफा देने के लिए पैसा नहीं है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये सब्सिडी का पैसा विजय माल्या को दे करके लंदन आप भिजवा दीजिएगा और हमारा पैसा हमको ना दे करके हमको फांसी पे झुला दीजिएगा, ये नहीं चलने वाला है, ये हम नहीं होने देना चाहते हैं। इसीलिए साथियों, आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि आज के समय में हमें महामानवों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके देखने की बजाय एक दूसरे के साथ खड़ा करके देखने की जरूरत है। हो सकता है कि अंबेडकरिज्म और मार्क्सिज्म में एक जबरदस्त कॉन्ट्राडिक्शन रहा हो, लेकिन मैंने भी इतिहास पढ़ा है। जिस डांगे के बारे में कहा गया कि उन्होंने कहा कि अंबेडकर को वोट देने के बजाय बैलेट को फेंक देना अच्छा है, उसी डांगे के साथ कामगारों के हड़ताल में हमेशा अंबेडकर शामिल होते थे और उनकी लेबर पार्टी शामिल होती थी। और अंबेडकर ने इस देश के अंदर अगर पार्टी बनाई तो लेबर पार्टी बनाई। दिस इज द बेसिक एसेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ मार्क्सिज्म एंड अंबेडकराइट मूवमेंट। आई वांट टू टेल यू, केरला के अंदर जो लेफ्टिस्ट लोग थे खुद को एथिस्ट कहते थे, लेकिन दलितों के मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाए थे। उस आंदोलन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गांधी और अंबेडकर के बीच में भी एक डिबेट रहा होगा, लेकिन अगर आपको गोडसे से लड़ना है तो गांधी का नाम लेना पड़ेगा, वरना ये गांधी छोड़ देंगे और उसका चश्मा अपना लेंगे। हमको पूरा गांधी चाहिए, सिर्फ चश्मा से हम नहीं मानने वाले हैं। चश्मा देकर के तुम हमें ठग नहीं सकते हो। हम तो कहते हैं कि विवेकानंद भी इनके नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर 2 साल हो गया सरकार को,
एक तो इन्होंने कोई योजना नहीं बनाई, और जो योजना बनाई उसका नाम विवेकानंद पे नहीं रखा, अपने संघ के नेताओं के नाम पे रखा, क्योंकि इनको विवेकानंद से भी दिक्कत है। विवेकानंद कहते हैं एक जगह, इस देश के अंदर गरीबों के सामने धर्म की बात करना सबसे बड़ा अधर्म है। अब बताइए ये धर्म के नाम पे वोट कैसे मांगेंगे और विवेकानंद इनकी मदद कैसे करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश के तमाम महामानव जो जनता की मुक्ति को लेकर के संघर्ष किए हैं, उन महामानवों के रास्ते पे हमको चलने की जरूरत है। चाहे वो महामानव पीसी जोशी हो, डांगे हो, बीटीआर हो, चाहे वो महामानव गांधी, अंबेडकर, फूले, पेरियार, भगत सिंह, या वो तमाम लोग जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, कबीर, रसखान और गुरु नानक हो, इन तमाम लोगों के साथ हमको खड़ा होना है और भारत की जो संस्कृति है उसको बचाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है, इस संविधान को बचाना है। अंतिम बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। इस देश के अंदर 55% नौजवान हैं, वही सीमाओं पे जाते हैं, वही खेतों में जाते हैं, वही फैक्ट्रियों में जाते हैं। इसलिए जय जवान। इस देश के अंदर किसान आत्महत्या करता है, उपजाने वाले का बेटा जो सबके लिए अनाज पैदा करता है, उसका बेटा किसान नहीं बनना चाहता। तो जय किसान, क्योंकि उपजेगा नहीं तो खाओगे क्या, और खाओगे नहीं तो विदेश कैसे जाओगे, कैसे फ्लाइट मोड में रहोगे। तो जय किसान। और संविधान की जय इसलिए क्योंकि यह संविधान ही इस देश में सही देशभक्ति की बात करती है। बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम आवर प्रियम्बल, द फर्स्ट लाइन इज वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, सो वी शुड सैल्यूट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी शुड सैल्यूट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। एंड द लास्ट थिंग, आजादी देश से नहीं मनुवाद से चाहिए, छुआछूत से चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं, जोर से बोल लो। अरे मनुवाद से, अरे जातिवाद से, तो हथियारों से, अरे झूठ मूठ से, फर्जीवाड़े से, जुमलेबाजों से, तो सूट बूट से हम लगे रहेंगे। अरे गरीबी से, अरे बीमारी से, है हक हमारी, है जान प्यारी, है प्यारी प्यारी। तो मैं भी बोलूं, तो तुम भी बोलो, सब मिलकर बोलो, तो जोर से बोलो। तुम कुछ भी कर लो, हम लड़ते रहेंगे। तुम जूते मारो, तुम पत्थर मारो, तुम गोली चलाओ, तुम जेल में डालो, तुम डंडे मारो, तुम जेल में डालो। तो सुन लो मोदी, आरएसएस सुन ले, हम लड़ते रहेंगे। तो संघवाद से, सामंतवाद से, तो जातिवाद से, तो मनुवाद से, तो मांग रही पूरी आबादी, अरे मांग रही आधी आबादी। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, लाल सलाम।